Greetings to all my learners from Vibrant Gurus. Creating HTML forms using Composer Chapter 1 Part 2. In this video, we will start with creating form in HTML. So first I will give you short introduction to the online form. With increase in the use of internet, activities have become online. आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट का ग्रोथ हो रहा है हम सारे एक्टिविटीज़ जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं. अगर कुछ सामान मंगवाना है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. अगर हमें बैंक ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो वो हम ऑनलाइन करते हैं. अगर कहीं पे एडमिशन लेने जाना है तो भी हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं. सो ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगी हैं. We may use a form on web page to fill information about anything. HTML forms helps the visitors to import data. Okay. Now what is HTML form? A form in HTML is a container used to collect different kinds of information. So HTML form contain information elements like label, checkbox, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये सारे HTML के एलिमेंट्स है जो आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो नाउ वी विल क्रिएट अ सिंपल फॉर्म यूजिंग HTML टैग्स. HTML एलिमेंट्स फॉर क्रिएटिंग फॉर्म. सो देर आर 4 मेन एलिमेंट्स और वो है फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग. So first now we discuss about form element. Form tag is used to create form in HTML. It acts as a container tag for all element used in the form. यानी कि जितने भी form elements है वो सारे opening and closing form tag के बीच में आएंगे. मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे form tag स्टार्ट हो रहा है और इस पे बीच में मैंने लिखा है input elements यानी कि जितने भी input tags है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है, सिलेक्शन एलिमेंट है, ये सब आएगा आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म टैग के बीच में. ओके. सो नाउ यू कैन सी इन अबव एग्जांपल इन फॉर्म टैग वी यूज 2 एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट इज एक्शन एंड सेकंड इज मेथड. सो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट? It is used to define where to send the form when user click on submit button. यानी कि यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपका इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा. सो यहाँ पे हमने लिखा है register.html. तो when user click on submit button, this file is opened and our data is submitted on this file. Okay. Second is method. It specifies the HTTP method of sending data. यहाँ पे 2 methods यूज होते हैं. फर्स्ट इज गेट एंड सेकेंड इज पोस्ट. If you define get method, it retrieves the data from the form and sends it to the server by attaching it to the end of URL. And second is post. The data is sent as a block through HTTP. By default, अगर आप मेथड डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू फॉर मेथड एट्रीब्यूट इज गेट. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में एज MCQ ये आता है. Now input element. Input elements are used to input various fields like text box, radio button and checkbox in form. आपका इंफॉर्मेशन कैसा है उस हिसाब से आपको अलग अलग बॉक्सेस एंड इनपुट एलिमेंट्स यूज करने हैं. ओके. सो इनपुट एलिमेंट इज अ कंटेनर टैग यानी उसका ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है. सो इनपुट टैग हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स like type, name and value. तो first type attribute, it specifies the field that is to be created. यानी कि अगर आपको text box बनाना है तो type is equal to text box होगा. अगर आपको check box बनाना है तो type is equal to check box होगा. Second, name specifies the name of the field and value specifies the default value for the field. अब first हम देखेंगे radio button. Radio button creates a radio button in form.
It is used to select a single item from group. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर, सो जेंडर में हम आइदर सिलेक्ट करेंगे फीमेल और मेल, तो इस तरह से अगर कोई वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है सो वी कैन यूज रेडियो बटन. सेकेंड चेकबॉक्स, creates checkbox in form. It is used to select multiple item from group. चेकबॉक्स जो है वो अलग अलग आइटम्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं एक से ज़्यादा, if you want to select more than one item, then you can use checkbox. Third is password. It is similar to text field but character typed converted into नॉन रीडेबल फॉर्म. ये सब आप लोग जानते हो कि जैसे हम कोई भी वेबसाइट पे जाके अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं तो हमारा पासवर्ड जो है वो बुलेट्स या स्टार के फॉर्म में डिस्प्ले होता है, तो वो हम पासवर्ड इनपुट एलिमेंट से क्रिएट कर सकते हैं. देन सबमिट. On clicking on submit button, the values of data entered in form submitted to the file specified in the action attribute of form element. Third is reset. On clicking the reset button, the data entered for cleared and set back to default values. यानी कि sometimes आपको क्या होता है कि आपने फॉर्म फिलअप तो कर दिया, फिर आप चाहते हो कि अब इसे सबमिट नहीं करना है, तो आप लोग क्या करते हो, वैसे ही वेबसाइट बंद कर देते हो, बट इट इज़ रॉन्ग. आपका डेटा कहीं पे भी मिसयूज हो सकता है. तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो जो भी डेटा आपने फिलअप किया है अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो उसको डिलीट करना ज़रूरी है, तो इम्पोर्टेंट है. तो ये डेटा जो डिलीट करना है वो किससे होगा, रिसेट बटन से. तो ये सारे इनपुट एलिमेंट्स थे. ओके, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट. It allows multi-line text input. It is a container tag. इसको भी क्लोज करना कंपलसरी है. It can be used to enter comment, report or a long description of a product. For example, आपको कोई फॉर्म में आपको कोई डिस्क्रिप्शन मांगा है कि आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दो, या आपने जो आपके जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखो, या एड्रेस लिखो. तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव फील्ड अगर आपको क्रिएट करने हैं तो वी कैन यूज टेक्स्ट एरिया एलिमेंट. इट हैज़ टू एट्रीब्यूट्स, द रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट, and they define the size of the text area element. First is rows. It is used to set number of rows of text that will be visible without scrolling up or down. यानी कि आपका बॉक्स जो है उसका हाइट डिफाइन करेगा रोज एट्रीब्यूट. एंड कॉल्स. इट इज यूज टू सेट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रोलिंग राइट टू लेफ्ट. यानी कॉल्स एट्रीब्यूट डिफाइंस विड्थ ऑफ योर बॉक्स. यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है. फॉर्म, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट दिया है, रोज मैंने दिया है 4 एंड कॉल्स दिया है 20, एंड यहाँ पे एक लाइन लिखा है एंड टेक्स्ट एरिया क्लोज किया. इतना करने से आपके पास एक बॉक्स तैयार हो जाएगा जिसमें आप इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर फैमिलियर विद फॉर्म एलिमेंट्स. I have also uploaded practical video of creating form using HTML. That is first practical of your chapter 1. So please subscribe our channel and find practical video. Hope you have saved this session. So Ctrl+S till we meet next.